দুটো দল আরো একবার শেয়ানে শেয়ানে লড়াই, ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে লড়াই। প্রথম ওভারের জন্য বোলিং মার্কে কেনা প্রথম ওভারের জন্য বাদশা, ধোনি, শুভজিৎ জানা হাওয়াই বল, নিচে ফিল্ডসম্যান জ্যোতি ভুলচুক করে গেলেন, ভুলচুক। ধোনির মতো ব্যাটারে তুমি ক্যাচ ড্রপ করেছো, পরবর্তী সময়ে তোমাকে মূল্য চোকাতেই হবে। প্রথম বল থেকে ক্যাচের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। সৈকত নগরী দীঘা থেকে উঠে আসা এই খেলোয়াড় শুভজিৎ জানা। ধোনি, অপরদিকে খোকন হালদার মুর্শিদাবাদ। বাংলা টেনিস ক্রিকেটে একটা পরিচিত নাম। অপরদিকে বোলিং মার্কে পিপি মেমোরিয়াল অ্যান্ড সার্ভাইভার। প্রথম ওভারের জন্য বাদশা, প্রথম বল থেকে জীবন দান ধোনির জন্য। খোকন হালদার সবে মাত্র ফেস করবেন ক্যাপ্টেন মুন্নাথুল, টসে জয়লাভ, ফিল্ডিং এর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যেখান থেকে। রিভার্সের চেষ্টা, হাওয়াই বল, উইকেট। খোকন হালদার ডিপার্ট। প্রথম উইকেটের পতন, এক উইকেটের পতন ঘটেছে। খোকন হালদার ফিরছেন ডাগআউটে, নতমস্তক, ধীর পদক্ষেপ। সেই পথে নতুন ব্যাটার সরোজ প্রামাণিক। কেন আমরা বারবার বলি ইস্পাত নগরী দুর্গাপুর, স্টিল সিটি দুর্গাপুর, এবং দুর্গাপুরের সেরা ইস্পাতের টুকরো যদি হয় সেটা সরোজ প্রামাণিক। অল ইন্ডিয়া টেনিস ক্রিকেট ফরম্যাট যদি আমরা দেখি, এই মুহূর্তে টপ ক্লাস অলরাউন্ডারের তালিকায় নামটা অবশ্যই সামিল সরোজ প্রামাণিক। বাংলার ছেলে, বাংলাকে রিপ্রেজেন্ট করছেন এবং নিজের দিনে প্রতিপক্ষকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য এই নামটাই যথেষ্ট। সরোজ, अगर रन बनाना है हर रोज तो साथ में ले लो सरोज। সরোজ অ্যাক্রস দ্য লাইন যাওয়ার চেষ্টা, তবে বাদশা প্রশংসা করতে হবে, চমৎকার লাইন এবং লেন্থ। টপ করবেন বোলিং মার্কে বাদশা নয়, সুরেশ। তবে যাই হোক না কেন, সুরেশ নিজের কাজটা করে যাচ্ছেন। একদম এই কাজটা তোমাকে করতে হবে সরোজ। আচ্ছা, যদি প্রবলেম হয় অমিত দা, বেলগুলো তুলে নাও। যদি প্রবলেম হয়, খুব প্রবলেম হয়, প্রত্যেকটা মুহূর্তে লাইভ কাভারেজ আইস রকার্স। এখান থেকে কি করলেন ফিল্ডসম্যান, সহজ কাজ কঠিন করে বসলেন। যেখান থেকে সিঙ্গেল টাপ ছিল, কষ্টসাধ্য ছিল, সেখান থেকে বাউন্ডারি, 4টে রান। এরকম গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে প্রত্যেকটা রান তোমার কাছে সোনার সমান, আর সেই জায়গা থেকে মিস ফিল্ডিং তোমাকে পরবর্তী সময়ে মূল্য চোকাতেই হবে। আরো একবার রিভার্সের চেষ্টা, তবে সোজা নয়।
সুরেশ নাথ দুর্দান্ত বোলিং করে গেলেন। এখান থেকে ওভারটা কমপ্লিট হবে। প্রথম ওভার থেকে রান সংখ্যা মাত্র 5। প্রথম সারির ব্যাটার খোকন হালদার ডাগ আউটে, একদিকে অ্যাঞ্জেল কলকাতা এবং অপরদিকে পিপি মেমোরিয়াল অ্যান্ড সার্ভাইভার। এনজিও ইউরেকা প্রেজেন্ট, এনজিও ইউরেকা প্রেজেন্ট, সিসিএল কর্পোরেট ক্রিকেট কার্নিভাল ওপেন টু অল ফরম্যাটের জন্য এটা প্রথমবার। স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু শান্তনু বেরা। দ্বিতীয় ওভারের জন্য বোলিং মার্কে রাহুল দেব রয়, রিন্টু, চন্দ্রকোনা এক্সপ্রেস। আরও একবার বড় শটে যাওয়ার চেষ্টা, তবে চমৎকার লাইন এবং লেন্থ। রিন্টুর প্রশংসা করতেই হবে। বাংলার যে কয়েকজন বোলার আছে তাদের মধ্যে রিন্টুর নামটাও সামিল আছে, কারণ রিন্টু যেভাবে বিগত 2-3টে মরশুম নিজেকে আপডেট করেছেন, পরিবর্তন করেছেন, নিজেকে বিবর্তনের রাস্তায় নিয়ে গেছেন, প্রশংসা করতে হবে। সাফল্যের চাবিকাঠি পরিবর্তন বা বিবর্তন, সেটা রিন্টু বেটার জানেন। শট, এই ধরনের শটগুলো কোথাও যেন চোখ জুড়িয়ে যায়। অফ স্ট্যাম্পের ওপরে পয়েন্ট অঞ্চলের ওপর থেকে বল যখন মাঠের বাইরে যাবে, লেফটি ব্যাটারগুলোর জন্য সত্যি চোখ জুড়িয়ে যায়, প্রাণ ভরে যায়। সেটা করে দেখালেন শুভজিৎ জানা ধোনি। বাউন্ডারি এলো, এনজিও ইউরেকা বাউন্ডারি। শট, শুভজিৎ জানা ধোনির ব্যাট গর্জে উঠবে, বল যাবে জনসমুদ্রে, দিয়ে যাবে হাফ ডজন। ক্যাচটা ড্রপ করেছিলেন, তবে তার মূল্য অবশ্যই চোকাতে হবে। ধোনি এই মেসেজটা দিয়ে যাচ্ছেন। গতকাল 7 বল থেকে 29 রানের একটা ছোট্ট ইনিংস, অসারদার ইনিংস, ক্যামিও ইনিংস তিনি খেলেছিলেন। আজকে তার চওড়া ব্যাটের দিকে তাকিয়ে দল অ্যাঞ্জেল কলকাতা। আরো একটা স্কোর বোর্ডে জুড়ে দিন। শুভজিৎ জানা ধোনি, ধোনি ধামাকা, সিসিএল ওভার বাউন্ডারি। গতকাল লাইভ লটারির মাধ্যমে শিবা 11 তারা সুপার 3-তে পৌঁছে গেছিলেন। এখান থেকে কাট করার চেষ্টা, তবে সরোজ ক্ষিপ্রতা দেখানোর চেষ্টা ছিল একটা রানে, তবে অনেকটা বাইরে। হোয়াইট বল আসবে, একটা অতিরিক্ত রান আসবে। রান সংখ্যা সব মিলিয়ে 22। এখান থেকে ড্রাইভ অনের দিকে রাজা আলী। আসলে রাজা আলীর কথা যখনই আমরা বলি, ওয়েস্ট ইন্ডিজের নিকোলাস পুরানের কথা বারবার মনে চলে আসে। রাজা আলী এমন একজন খেলোয়াড়, নিকোলাস পুরানের সাথে দুবাইয়ের ড্রেসিং রুম শেয়ার করার যার অভিজ্ঞতা রয়েছে, রাজা আলী। গতি আনতে গিয়েছিলেন, নিয়ন্ত্রণটা হারিয়েছেন সরোজ প্রামাণিক। যখনই দেখলেন লেগ স্টাম্পের অনেকটা বাইরে যাওয়ার রাস্তা করে দিলেন, যেখান থেকে ওয়াইড সূত্রে একটা রান এলো। সব মিলিয়ে রান সংখ্যা 24। আরো একবার স্পেশাল থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি আমরা এই টুর্নামেন্টের স্পেশাল ম্যান যিনি, স্থপতি শান্তনু বেরা। বল এটা যাবে সরাসরি স্কোয়ার লেগের ওপর থেকে। টাটা বাই বাই করতে করতে মনীষের মাথার উপর থেকে ফিনিশ করবেন ওভার বাউন্ডারি।
এবং বারবার যারা জিজ্ঞেস করছেন যে ফরম্যাট কি আছে, আমরা তাদের উদ্দেশ্যে জানিয়ে দিই। প্রথম ম্যাচে জয়লাভ করেছে রিহান হ্যাস 11, এবং এই ম্যাচে যারা জয়লাভ করবেন তারা খেলবেন প্রথম প্লে অফ। দেন যারা পরাজিত হবেন তারা খেলবেন শিবাই 11-এর সাথে এলিমিনেটরে, তারপরে ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। আরও একবার আমরা কনফার্ম করে দিই, রেহান হ্যাস 11 তারা প্রথম দল হিসেবে পৌঁছে গেছে প্লে অফে। এই খেলায় যারা জয়লাভ করবেন তারা যাবেন দ্বিতীয় দল হিসেবে প্লে অফে, অর্থাৎ প্রথম এবং দ্বিতীয় দলের মধ্যে খেলা হবে। যারা পরাজিত হবেন তারা খেলবেন এলিমিনেটরে শিবা 11-এর সাথে, এবং তারপরে ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। এদিকে হোয়াইট বলের সংকেত, একটা রান অতিরিক্ত সুবাদে সুরেশ নাথ। প্রথম ওভারটা দুর্দান্ত ওভার, তবে দ্বিতীয় ওভারটা একটু এক্সপেন্সিভ। রিন্টু রয় এখান থেকে একটা রান ওয়াইড সূত্রে 31 স্কোর বোর্ডে। ভিন্ন ভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রচুর মানুষ, এনজিও ইউরেকা তাকে সাপোর্ট করছেন। এখান থেকে অ্যাক্রস দ্য লাইনে যাওয়ার চেষ্টা, তবে সরোজ প্রামাণিক দুর্দান্ত একটা কল, একদম যেন চোখে চোখে ইশারা, রানটা চুরি করে নিলেন। একটা রান। সরোজ প্রামাণিক, the unbeaten hero, Mr. All-Rounder. কেন তার এত ফ্যান ফলোয়ার বাংলা এবং বাংলার বাইরেও, প্রমাণ করছেন সরোজ প্রামাণিক। এখান থেকে লফটেড শট, কভার অঞ্চলে জ্যোতির একটা ঝলক দেখেছিলাম আমরা গতকাল। আমাদের স্ট্যাটিস্টিশিয়ান স্কোরার তারা প্রত্যেকটা মুহূর্তে বলছিল জ্যোতিটা ছড়িয়ে যাচ্ছেন 22 গজে, প্রত্যেকটা বল যেভাবে মাথার উপর থেকে মাঠের বাইরে পাঠাচ্ছেন, সত্যি জ্যোতির প্রশংসা করতেই হয়। উইকেট, বলের লাইনটা মিস করলেন, ফুল টস ছিল, গতিতে পরাস্ত করলেন শুভজিৎ জানা ধোনি। সাফল করেছিলেন, লেগ স্টাম্পটা হিট করলো, ক্লিন বোল্ড। ফিরছেন পিপি মেমোরিয়াল সার্ভাইভারের জন্য দ্বিতীয় উইকেটেটা। খোকন হালদারের পরে শুভজিৎ জানা ধোনি, তাকে ফিরতে হচ্ছে ডাং আউটে। OUT। অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই আমরা এই টুর্নামেন্টের মেন অর্গানাইজার মিস্টার শান্তনু বেরা, যিনার মস্তিষ্ক প্রসূত এই টুর্নামেন্ট। প্রত্যেকটা প্লেয়ারকে এক ছাদের তলায় আনা, প্রত্যেকটা প্লেয়ারকে একটা টুর্নামেন্টে সামিল করা প্রথম মরশুমে অনেকটা কঠিন ছিল, এতটা সোজা ছিল না। আর সেই কঠিন কাজটাকে সোজা করে দেখিয়েছেন যিনি, none other than the man with golden heart, মিস্টার শান্তনু বেরা। সুমন গোপ, প্রিন্স অফ মেদিনীপুর। তো লেফটি ব্যাটার নাকি রাইটি ব্যাটার, কিছু সময়ের জন্য অনেকেই কনফিউজড হয়ে গেছিলেন যে সুমন গোপ এলেন তো রাইটি ব্যাটার হিসেবে, স্টান নিলেন রাইটি, তারপরে লেফটিতে চলে গেল। একদম এটাই সুমন গোপ। তুমি সুমন গোপকে নিয়ে কিছু চিন্তা ভাবনা করতেই পারবে না শুরু থেকে, একটু আলাদা কিছু, তুমি সিলেবাস যেটা পড়বে সেটার বিপরীত সুমন গোপ। তবে এক্ষেত্রে সরোজ প্রামাণিক চমৎকার একটা ফ্লিক, একটার বেশি রান নয়। রিন্টু রয় একটা ওভার এক্সপেন্সিভ গেছে, তবে ফিরে আসার দক্ষতা রয়েছে রিন্টুর মধ্যে। এখান থেকে ওভারটা কমপ্লিট হবে। ওভার নম্বর 3 কামস টু অ্যান এন্ড আফটার 341 for 2। 3 ওভার শেষে 41, দুটো উইকেটের বিনিময়ে
পরবর্তী 3টে ওভারের জন্য মাইক্রোফোনে ছোট্ট একটা পালা বদল, আওয়াজ বদলাবে। মাইক্রোফোনে স্বাগত আমাদের প্রত্যেকের প্রিয় অরুণ কুমার, অরুণ দাকে। थैंक यू सुरजीत। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 41 रन 2 विकेट खोकर 2 टॉप ऑर्डर बैट्समैन बैक टू पवेलियन गए। खोखन हलदार के बाद शुभजीत जाना दोनों ही सलामी ओपनर्स इस समय बैक टू डगआउट। वहीं 2 बेहतरीन खिलाड़ी, एक तरफ है सरोज तो दूसरी तरफ है सुमन। एस स्क्वायर इस वक्त क्रीज पर। काना जाट इस वक्त गेंदबाजी में परिवर्तन के तौर पर खड़गपुर एंड से। पहली गेंद और बड़ी सफलता, बड़ा विकेट, क्लीन बोल्ड किया। सरोज प्रमाणिक को बोल्ड आउट कर बैक टू पवेलियन की राह दिखाई। बड़ा विकेट, एक सक्सेसफुल खिलाड़ी को बैक टू पवेलियन भेजने में सक्षम हुए काना जाट, जिन पर विश्वास ही नहीं यकीन भी था कप्तान मुन्ना धोल को, और उस पर खरे उतरे गेंदबाज। तीसरा विकेट बैक टू डगआउट सरोज के रूप में। लल्ला नए बैट्समैन इस वक्त जो है कि क्रीज पर अराइव कर रहे हैं। सरोज के आउट होने के बाद 3 बड़े बल्लेबाज जो हैं कि बैक टू पवेलियन, पहले खोखन हलदार, उसके बाद शुभजीत जाना, उसके बाद सरोज। कुल मिलाकर इस वक्त नए बल्लेबाज लाला, काना अपने बॉलिंग मार्क से। ऊंचा खेले, हवा में खेले, खिलाड़ी तैनात, कोई मौका नहीं। एक और सफलता, दोहरी सफलता मिली यहां पर गेंदबाज को। लाला आए, लाला गए, कमिंग एंड गोइंग बट डूइंग इज नथिंग। गोल्डन डक में आउट होकर बैक टू पवेलियन जा रहे हैं इस समय लाला। उनके स्थान पर नए बल्लेबाज जिन्होंने बीजीपीएल में धमाकेदार इनिंग्स, धमाकेदार परफॉर्मेंस एज ए यंग टैलेंट के रूप में उभर करके आए। मोहम्मद इरफान इस समय क्रीज पर अराइव कर रहे हैं एंजल कोलकाता टीम के लिए, क्योंकि 3 टॉप ऑर्डर बैट्समैन इस समय 3 के बाद चौथा विकेट भी 41 के योग पर। इरफान आए और इरफान छाए, इन पर कोई भी दबाव नहीं। हैट्रिक बॉल थे लेकिन छक्के में कन्वर्ट किया। हैट्रिक बॉल थी ये गेंदबाज के लिए, लेकिन इरफान जिस शैली में बल्लेबाजी करते हैं, जिस तरीके से खेलते हैं, बिल्कुल उसी का परिचय दिया और एक बेहतरीन छक्के के लिए कन्वर्ट किया। इस बार ऑफसाइड पर बाहर से अंदर की तरफ गेंद को थोड़ा मूव करवाया काना जाट ने, समझ नहीं पाए बल्लेबाज इरफान। यही होती है, कभी गेंदबाज कभी बल्लेबाज, दोनों के बीच जो अप एंड डाउन, जो जुगलबंदी, जो कश्मकश चलती है, उसी का नाम है क्रिकेट। लेंथ वाली गेंद को पिक किया, हिट किया, वहां चूक हुई है खिलाड़ी से। जहां तक अच्छी ट्रैवलिंग रही गेंद, 1 बाउंस और 4 रन चौके के लिए। इस चौके के प्रस्तुतकर्ता CCL कॉर्पोरेट क्रिकेट लीग, और इस चौके के साथ रन संख्या बढ़कर 51 पर जा पहुंचा, 51। जहां विकेट्स का पतन हो रहा है वहीं रन भी बन रहे हैं। कुल मिलाकर अच्छा ये घमासान देखने को मिल रहा है, बल्ला और गेंद के बीच संघर्ष।
फिर से एक बार इरफान ने गेंद को उड़ाया, लेकिन खिलाड़ी तैनात है। रिंटू ने नहीं की गलती, एक और सफलता, एक और विकेट, 5वां आउट होकर बैक टू पवेलियन। इरफान ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उनका विकेट धराशायी। 5 विकेट खोकर रन संख्या 51। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 51 रन, 5 विकेट खोकर। और इसके बाद जो है कि प्लेऑफ का दौर शुरू होगा, एलिमिनेटर, क्वालिफायर, उसके बाद फाइनल, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम सीसीएल के अंतर्गत चलता हुआ ये ओपन टू ऑल टेनिस क्रिकेट फेस्ट जो है कि चल रहा है, फाइनल डे उसका, जिसे प्रेजेंट कर रहे हैं एनजीओ यूरेका। द हार्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट मिस्टर शांतनु बेरा सर, जिनकी अगुवाई में ये खेल चल रहा है, स्पोर्ट्स कार्निवल। नए बैट्समैन कनाई माल इस वक्त नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर। अच्छी गेंद, कुल मिलाकर शुरुआती 2 गेंद जो है कि बिंदी करने में सक्षम हुए गेंदबाज। अगली गेंद सीधे बल्ले से खेला है, ऑन साइड के जानिब, स्ट्रेट टू द मैन, कोई गलती नहीं। एक और सफलता, एक और विकेट, इस बार सुमन गोप। अब सुमन गोप भी जो है कि बैक टू पवेलियन गए। 6ठा विकेट सुमन के रूप में आउट होकर बैक टू डग आउट। हेलो रिंटू, रिंटू, सब कुछ घटता हुआ नजर आ रहा है इस खेल में। मनीष इस वक्त गेंदबाजी पर हैं, 6 विकेट आउट। नए बल्लेबाज आकाश, बल्ला भांजा है, संपर्क साधने में जहां तक असमर्थ रहे बल्लेबाज, बाकी का काम मुन्ना ने स्वयं कंप्लीट किया। पीपी मेमोरियल सर्वाइवर जो है कि अच्छी गेंदबाजी प्रस्तुत किए सशक्त मजबूत टीम के विरुद्ध। ऊंचा खेले, हवा में है गेंद, ये मौके को जो है कि भुनाया है, एक और विकेट को बैक टू पवेलियन भेजा है। आना जाना लगा है, एक खिलाड़ी आ रहे हैं तो दूसरे खिलाड़ी जा रहे हैं। कुल मिलाकर पीपी मेमोरियल सर्वाइवर जो है कि बहुत बेहतरीन गेंदबाजी, सुदृढ़ सशक्त मजबूत गेंदबाजी का परिचय दिए हैं यहाँ पर। कुल मिलाकर सभी गेंदबाजों ने अपनी अपनी ड्यूटीज़ को पूरी तरीके से जो है कि संपन्न किया। नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर
अराइव करते हुए अगली गेंद लेकर गेंदबाज। चूक हुई है विकेट कीपर से, लेकिन कदमों तले गेंद को रोकी गई। क्यों ना हो, क्योंकि बंगाल बाई का संकेत आया है। इसी बीच ओवर नंबर समाप्त हुआ, 5 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 52, यानी कि इस ओवर से मात्र 1 रन आया है। और इस 1 रन के साथ बहुत ही सुदृढ़ गेंदबाजी और सफलता, कुल मिलाकर सब कुछ इस ओवर में देखने को मिली है। और बॉलिंग वाली टीम यानी कि पीपी मेमोरियल सर्वाइवर्स के लिए बहुत ही सुखद समाचार लेकर के भी आई है। ओवर आखिरी ओवर इस पहली पारी के लिए लेकर के आ रहे हैं कान्हा जाट। देखिए क्या कुछ इस ओवर में घटता है, क्योंकि ये ओवर बहुत कुछ दर्शा जाएगा, बहुत कुछ लिख जाएगा, बहुत कुछ बता जाएगा। ऑफ साइड द ऑफ स्टंप, अच्छी गेंद, अच्छी गति, अच्छा नियंत्रण, बिल्कुल अच्छी उछाल के साथ कैरी की विकेट कीपर के पास गेंद। सीसीएल कॉर्पोरेट क्रिकेट लीग जिसे प्रेजेंट कर रहे हैं एनजीओ यूरेका, द गोल्डन हार्ट ऑफ शांतनु बेरा जी, इसके कर्णधर। और ये ऊंचा शॉट बिल्कुल मुकाम तक भेजा है, डिपॉजिट किया है 6 रन के लिए। Beautifully made, middle of the blade, sensational shot hit by right-handed batsman, a sparkling 6 runs. बॉल आ गया। सीसीएल ओवर बाउंड्री 6 रन, और इस ओवर बाउंड्री के साथ रन संख्या 58 रन सिंगल के लिए भाग रहे हैं कनाई माल। बाएं हाथ के प्रभावशाली लेग बाई का संकेत, अतिरिक्त के लेग बाई के रूप में रन जुड़ा है। कुछ भी हो, लेकिन ये आखिरी ओवर, जितने भी रन जुड़ेंगे बोनस बनेंगे, क्योंकि एंजल कोलकाता की टीम भी सशक्त मजबूत है, अच्छी बॉलिंग डिपार्टमेंट है, और कितने क्या लक्ष्य तक पहुंच पाती है ये भी देखना एक होगा। अगली गेंद कान्हा, कन्हई माल बैकफुट पर जाकर के दिशा दिखाना चाहते थे गेंद को फाइन लेग क्षेत्र पर। लेग बाई का संकेत, लेग बाई का संकेत, और रन बढ़ चला इस समय 60 पर। फुल टॉस गेंद, नो बॉल का संकेत बीमर के लिए, और 1 रन पाया है। अब आज़ादी भी मिलेगी खिलाड़ी को। देखिए इस आज़ादी को किस प्रकार भुनाते हैं, बनाते हैं, क्योंकि जोड़ तोड़ का ये खेल है क्रिकेट, जिसे कहते हैं द ग्लोरियस ऑफ अनसर्टेनिटी। देखिए ये चक्र घुमा है, यानी कि पूरी आज़ादी यहाँ मिलेगी बल्लेबाज कन्हई माल को। देखिए इस आज़ादी का कितना जो है कि फायदा ले पाते हैं बल्लेबाज। बल्ला भांजे हैं, संपर्क साधने में असमर्थ रहे हैं, यहां रनआउट के रूप में कन्हई को जाना पड़ेगा। बैक टू पवेलियन, क्योंकि तलाश रहे थे, खोज रहे थे, सर्चिंग कर रहे थे, लेकिन नेटवर्क नहीं मिल रही थी मोबाइल की भांति। एक और विकेट रनआउट के रूप में आउट होकर बैक टू पवेलियन। विकेट नंबर 8वां बैक टू डगआउट्स। नए बल्लेबाज धीरे धीरे अराइव कर रहे हैं, एक के बाद एक खिलाड़ी। 8 विकेट यानी कि मजबूती वाली गेंदबाजी प्रस्तुत की है पीपी मेमोरियल सर्वाइवर्स। गेंद रन के लिए भाग रहे हैं, रन के लिए तलाश कर रहे हैं। एक और विकेट, एक और रन आउट। कुल मिलाकर 9 विकेट जो है कि गवा चुकी टीम एंजल कोलकाता।
6 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन संख्या 62 बनाए। 63 का लक्ष्य है, किस प्रकार से पार पाएंगे ये देखना बाकी है। आप सभी देख पा रहे हैं सीधा प्रसारण यूट्यूब और फेसबुक लाइव के माध्यम से। आयुष रॉकर्स आपके मोबाइल हैंडसेट तक पहुंचा रहे हैं, आपके घर, आपके कस्बे, आपकी गली, आपके घर, आपके हर एक स्थान तक CCL यानी कि कॉर्पोरेट क्रिकेट लीग 2K25 जिसे प्रेजेंट कर रहे हैं NGO यूरेका, द गोल्डन हार्ट ऑफ शांतनु बेरा जी, जिनकी अगुवाई में यह टूर्नामेंट आज सफलतम शिखर पर पहुंचा है। आज ओपन टू ऑल क्रिकेट फेस्टिवल का आखिरी दिन और फाइनल डे। इसके तुरंत बाद जो है कि प्ले ऑफ्स शुरू होंगे इस खेल के, और कल इसी ग्राउंड में फुटबॉल का भी आप लुत्फ उठा पाएंगे। तो जितने भी स्पोर्ट्स लवर्स हैं, जितने भी स्पोर्ट्स को चाहने वाले हैं, आप सभी के लिए यह सौगात लेकर के आया है कॉर्पोरेट स्पोर्ट्स कार्निवल। मिलते हैं छोटे से विराम के लिए, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आएंगे हम। हेलो हेलो। दूसरा सत्र प्रारंभ होता हुआ। सभी को नमस्कार। मैं कुमार अरुण, मेरे साथी कमेंटेटर सुरजीत के साथ आप सभी का भव्य स्वागत करते हैं। ऐतिहासिक टूर्नामेंट कॉर्पोरेट क्रिकेट लीग संस्करण ये ओपन टू ऑल क्रिकेट फेस्ट चलता हुआ, जो प्रथम बार इस आयाम को जोड़ा है कॉर्पोरेट क्रिकेट लीग, और आज उसका फाइनल डे, और फाइनल डे के आज का ये दूसरा मुकाबला पीपी मेमोरियल सर्वाइवर्स और टीम एंजल कोलकाता के बीच। एंजल कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 6 ओवरों में 9 विकेट खोकर 62 रन बनाए हैं। 63 का लक्ष्य रखा है अपनी प्रतिद्वंदी टीम पीपी मेमोरियल सर्वाइवर्स के लिए। देखिए इस लक्ष्य को किस प्रकार से पार पाते हैं पीपी मेमोरियल सर्वाइवर्स, यह देखना बाकी है। इसके बाद प्लेऑफ का दौर शुरू होगा, और प्लेऑफ में कौन सी टीम जो है कि एज ए फर्स्ट टीम जो है कि अराइव करेगी फाइनल्स में, और उसके बाद एलिमिनेटर में कौन सी दल, कौन सी टीम जो है कि सिवाय के साथ बढ़ेगी, ये भी कश्मकश देखा जाएगा। सब कुछ होना बाकी है, क्योंकि ये खेल अभी बहुत कुछ रंग दिखाएगा, बहुत कुछ चमक दिखाएगा, बहुत कुछ इतिहासों के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों से लिख जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आपके मोबाइल हैंडसेट तक पहुंचा रहा है आयुष रॉकर्स। आप सभी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं आयुष रॉकर्स लाइव के माध्यम से। जब तक कि दूसरा सत्र प्रारंभ हो, मेरे साथ जुड़ेंगे सुरजीत। স্বাগত আরো একবার আপনাদের প্রত্যেককে এনজিও ইউরেকা প্রেজেন্ট সিসিএল ওপেন টু অল ফরম্যাটের জন্য প্রথমবার খড়গপুর বিদ্যাসাগর ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক থেকে লাইভ আসছে আইস রকার্সের মাধ্যমে। যার জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত 6 ওভার থেকে 63। মুন্না ধুল, বিপ্লব ধুল আরামবাগের ছেলে, গোঘাটের ছেলে, অপরদিকে জ্যোতি ভিন রাজ্যের খেলোয়াড়। বোলিং মার্কে কৃষ্ণা খয়রা।
প্রথম বল ক্যাচ হওয়ার সম্ভাবনা লাল্লা, তবে চমৎকার ফিল্ডিং এফোর্ট, প্রশংসা করতে হবে ক্যাপ্টেন লাল্লা। আশা রাখবো চোট গুরুতর নয়। ম্যান্ডেটরি পাওয়ার প্লে, এটাকে কাজে লাগাতেই চাইবেন। একদিকে মুন্না, অপরদিকে জ্যোতি। पीपी मेमोरियल एंड सर्वाइवर। बिल्कुल पहली प्राथमिकता है 63 का लक्ष्य है, तो दोनों ही खिलाड़ी अपने आप को अपग्रेड करना चाहेंगे और टीम को भी आगे बढ़ाना चाहेंगे सुरजीत, क्योंकि 63 का लक्ष्य है। तो कितने जल्द इसमें रन बनाएंगे अगर पावर प्ले में, तो बिल्कुल आसानी होगी। शॉट स्ट्रेट टू द फील्डर কৃষ্ণা খয়রা। তবে অরুণদা শটটা অনেকটা ভালো শট ছিল বলতেই হবে, তবে ফিল্ডিং সেটআপ মনীষ রাঠি একদম সোজা। बिल्कुल इसी की तो दाद देनी पड़ती है। गेंदबाज अगर अपने सेटअप के हिसाब से गेंदबाजी करते हैं तो बिल्कुल उनको सफलता मिलती है। और यहाँ विकेट जो है कि की फैक्टर होगा सुरजीत, क्योंकि 63 रन। क्या लगता है आपको? একদম আমার মনে হচ্ছে এটা ফাইট হবে, কারণ দুটো দলই যথেষ্ট শক্তিশালী। একদিকে অ্যাঞ্জেল কলকাতা, যে টিমের মেন্টর রাজ জয়সওয়ালের মতো মানুষ থাকবে, সেখানে তুমি এত সহজে জয়লাভ করতে পারবে না। মাস্টার মাইন্ড আমরা কেন বলি রাজ জয়সওয়ালকে, মেন্টর অ্যাঞ্জেল কলকাতা, অপরদিকে তুমি প্রতিপক্ষ দল পিপি মেমোরিয়াল সার্ভাইভার, যেখানে ছোটনদার মতো মানুষ যদি মেন্টর হয়, লড়াই একদম শেয়ানে শেয়ানে জমাটি ম্যাচ হবে, এটা আমরা আশা করতেই পারি। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि दोनों टीमें सशक्त मजबूत हैं और नियम नहीं ब्रांड के लिए जाने जाते हैं, तो फिर एक अच्छा संघर्ष जरूर देखने को मिलेगा। और आज खड़गपुर का ये ऐतिहासिक मैदान भी गवाह बनेगा इस संग्राम के लिए। अगली गेंद लेकर गेंदबाज রাজা আলী সবেমাত্র ব্যাট হাতে এলেন, সেই রিভার্সের চেষ্টা। বাংলা টেনিস ক্রিকেটে এমন একজন ব্যাটার যিনি সফল হয়েছেন, রান পেয়েছেন। ভিন রাজ্য থেকে প্রচুর খেলোয়াড় এসেছে, তবে বাংলায় খুব বেশি সাকসেস প্রত্যেকে পায়নি, তবে রাজা আলী সাকসেস পেয়েছেন, এটা বলতেই হবে। जी बिल्कुल, राजा अली जैसे खिलाड़ी सामने हैं और सक्सेसफुल खिलाड़ी हैं, तो बिल्कुल ये बात और भी लाजमी हो जाती। अगली गेंद लेकर बॉलर রাজা আলী এক্ষেত্রে অ্যাক্রস দ্য লাইন মিড উইকেটের দিকে একদম। কেন আমরা রাজা আলীর কথা বলি বারবার, অরুণদা তুমি যখন নিকোলাস পুরানের সাথে ড্রেসিং রুম শেয়ার করছো, আন্তর্জাতিক খেলোয়াড় ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে যিনি বারবার একটা লেভেলের ক্রিকেট খেলে গেছেন, তুমি তার সাথে যখন ড্রেসিং রুম শেয়ার করছো, তোমার একটা বাড়তি আত্মবিশ্বাস থাকবে, তুমি বেটার কিছু তার কাছ থেকে শিখবে, তো সেটা কাজে লাগাতে হবে আজকে। एब्सोल्युटली, क्यों नहीं। और ये मुन्ना के बल्ले ने हाहाकार मचाया है। 6 रन के लिए डिपॉजिट किया स्टैंड पर। इस छक्के पहला ओवर बाउंड्री जो है कि इस पारी के लिए, और मुन्ना जब तक रहेंगे कुछ ना कुछ खास करेंगे। और राजा अली जैसे खिलाड़ी के साथ अगर पार्टनरशिप बनती है तो फिर देखते ही बनती है, सब कुछ देखने को मिलेगा। क्योंकि दो सेरा दल इस वक्त आमने सामने भिड़ रही हैं, एक तरफ एंजल कोलकाता तो दूसरी तरफ पीपी मेमोरियल सर्वाइवर्स हैं। तो दोनों टीमें अव्वल दर्जे की टीमें हैं। जानते हैं क्या मजबूत कड़ी है, क्या कमजोर कड़ी है। फिर से एक बार बैक टू बैक मैक्सिमम के लिए, जहां तक ये गेंद ट्रैवल किया, 1 बाउंस 4 रन चौके के लिए। सब कुछ देखने को मिलेगा, मैंने कहा, क्योंकि यह सीसीएल है मेरी जान। जहां तक पहले ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन संख्या 12। थोड़ा अगर मेडिकल किट हो तो ग्राउंड पर भेजें मेडिकल किट। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 12 यानी कि 63 के जवाब में 12 रन स्कोर बोर्ड दर्शा रहा है। किस प्रकार से ये मैच चलेगा, किस प्रकार से ये खेल में उतार चढ़ाव देखा जाएगा, क्योंकि दो अव्वल दर्जे की टीमें शीर्ष पायदान में पहुंचने के लिए आज के दिन संघर्ष करेगी, आज के दिन अपने आप को इस खेल में पाएगी, ये देखना बाकी है। क्योंकि एक तरफ है सरोज, तो दूसरी तरफ मुन्ना जैसे खिलाड़ी हैं, वहीं राजा अली जैसे बल्लेबाज हैं। तो कुल मिलाकर एक अच्छा संघर्ष देखने की पुरजोर
आशाएं की जा रही हैं और दर्शकों के तादाद में भी धीरे धीरे कर इजाफा हो रहा है, क्योंकि ये नवनिर्मित स्टेडियम है जो योगेश राव पटेल सर जी की ये उम्दा सोच, माननीय श्री प्रदीप सरकार जी की जुगलबंदी में स्टेडियम का निर्माण हुआ और आज सीसीएल इस ऐतिहासिक अंचल में चलता हुआ। मनीष गेंदबाज, मनीष राठी गेंदबाज। और इस ग्राउंड के विषय में हम बातचीत कर रहे थे। ऐतिहासिक मैदान जहां विदाउट टिकट आपको एंट्री मिलती है। ऊंचा खेले, हवा में खेले, कितनी दूर जाएगी, बिल्कुल ये सरोज के पास पहुंची। एक और जो है कि सफलता हाथ लगी है। ज्योति के बाद राजा इस वक्त बैक टू पवेलियन। जैसे कि हम बात कर रहे थे, अप डाउन, उतार चढ़ाव, पारा कैसे उठेगा, पारा कैसे गिरेगा, सब कुछ देखने को मिलेगा इस खेल में, क्योंकि ये बहुत ही प्रेस्टिजियस मैच है, प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट। सीसीएल क्रिकेट कॉर्पोरेट क्रिकेट लीग 2K25 जिसे प्रेजेंट कर रही है एनजीओ यूरेका, जिसके कर्णधर माननीय श्री शांतनु बेहरा जी, जिनकी उम्दा सोच आज पृष्ठभूमि पर उतरी है और ये खेल चलता हुआ फर्स्ट टाइम जो है कि ओपन टू ऑल टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट, आज उसका फाइनल डे। फील्डिंग में फेरबदल, क्योंकि नए बल्लेबाज इस वक्त अराइव किए हैं। नए बल्लेबाज क्रीज पर। अगली गेंद लेकर बॉलर खड़गपुर एंड से तैयार। और ऊंचा खेले, हवा में खेले, गति के साथ निकल जा रही है गेंद, बिल्कुल आउट ऑफ द पार्क। मैक्सिमम 6 रन ओवर स्क्वायर लेग रीजन। 6 रनों के लिए ये बल्लेबाज आए और बल्लेबाज छाए। छक्के के साथ अपनी पारी की शुरुआत शुभारंभ श्री गणेश के यहाँ पर बल्लेबाज। नाग जैसा नाम वैसा काम, क्योंकि ये खिलाड़ी अपने बल्ले से अपना परिचय दे रहे हैं। अगली गेंद लेकर मनीष अपने बॉलिंग मार्ग से टपक खाने के बाद अच्छी उछाल, वाइड का संकेत आया है एक्स्ट्रा के। जहां तक बॉलिंग टीम रिव्यू लेना चाहती हैं, जहां तक वाइड का संकेत आया है और टीवी अंपायर के लिए रुक किया है टीवी अंपायर के पास, क्योंकि गेंदबाजी वाली टीम ने रिव्यू का इस्तेमाल किया है। समय लगेगा क्योंकि डिसीजन इस वक्त पेंडिंग। फेयर डिलीवरी। जहाँ तक फेयर डिलीवरी का संकेत आया, यानी कि बॉलिंग वाली टीम के लिए इस वक्त सुरक्षित है रिव्यू, क्योंकि खोखोन ने बिना हेजिटेशन के ही रिव्यू के लिए कॉल किया। अगली गेंद मनीष, फुल टॉस गेंद, हवा में खेले, ऊंचा खेले, चली जा रही है, वेल ट्रैवल्ड शॉट ओवर मिड विकेट, 6 रन्स।
दमखम बिल्कुल ये स्तंभ है और धुआंधार बल्लेबाजी चल रही है, क्योंकि फुल टॉस गेंदों की सही धुनाई कुटाई बुनाई सब कुछ चल रहा है। সুরজিৎ একদম যেভাবে তুমি 63 রান চেস করতে গেলে যে ব্যাটিং ঔদ্ধত্য প্রয়োজন, তবে নাক যতক্ষণ থাকবেন তবে তোমাকে ছোবল খেতেই হবে। এক্ষেত্রে আরো একবার দুর্দান্ত একটা ড্রাইভ, সুমন গোপ লং অফে জায়গা বদল ঘটাবেন নাক। বাংলা টেনিস ক্রিকেটে আরো একজন সফল অলরাউন্ডার আমরা বলতেই পারি নাক। 25 1.5 ওভার, জয়ের জন্য 63 টার্গেট। বিপ্লব ধুল, মুন্না ধুল অন স্ট্রাইক ক্যাপ্টেন, 3 বল থেকে 11 রানে ব্যাট করছেন, অপরদিকে 4 বল থেকে 13 রানে নাক। पटके हुए শর্ট অফ লেন্থ পুল করার চেষ্টা, তবে কি করলেন মুন্না ধুল। আফসোস আফসোস করছেন। এই ধরনের বল থেকেও উইকেট, এটা সত্যি কোথাও না কোথাও একটু চাপ বাড়বে। মুন্না ধুল ফিরছেন ডাগআউটে। इसी के लिए हम बातचीत कर रहे थे सुरजीत, क्योंकि ये अप एंड डाउन देखने को मिलेगा। पारा से जैसा चढ़ता है और गिरता है वो इस मैच में दिखेगा, क्योंकि एंजल कोलकाता के साथ पीपी मेमोरियल एंड सर्वाइवर्स खेल रहे हैं, तो ये उतार चढ़ाव तो देखना बनता भी है। সরোজ প্রামাণিক सरोज के विरुद्ध इस कदर की छेड़खानी इतना आसान नहीं होगी, क्योंकि ये खिलाड़ी परिपक्व हैं और जैसे जैसे खेलते जा रहे हैं स्थिति को अपने अनुरूप करना जानते हैं सरोज। अगली गेंद लेकर ऑन साइड पर खेला, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी मिड ऑन क्षेत्र पर आकर जब तक की फील्ड करते 1 रन। একদম কাকা এবং নাগের যুগলবন্দি, একটা দুর্দান্ত পার্টনারশিপ এখান থেকে প্রয়োজন। দক্ষতা রয়েছে, দুজনেরই দক্ষতা রয়েছে, যে কোনো মুহূর্তে ক্যামিও ইনিংস যে কোনো মুহূর্তে ম্যাচ ঘুরিয়ে দিতে পারে। তবে অপরদিকে দেখতে হবে কে আছে মিস্টার অলরাউন্ডার সরোজ প্রামাণিক। তিনিও কোনো অংশে কম নয়, ছেড়ে কথা বলবেন না, লড়াই একেবারে জমাটি। কাকা এক্ষেত্রে ড্রাইভ, কাভার অঞ্চলের দিকে প্রোটেকশন ডিপে একটা রান, বাড়লো দলের একটা রান, সব মিলিয়ে রান সংখ্যা বাড়বে। একটা রানের বৃদ্ধি 27, 2.3 ওভার, 6 বল থেকে 14 নাগ, 1 বল থেকে 1 কাকা রামপুরা। প্রয়োজন জয়ের জন্য 21 বল থেকে 36 রান। रिवर्स खेलने का प्रयत्न किए, और इसी के लिए हम बात कर रहे थे सुरजीत की सरोज के विरुद्ध जो है कि इस कदर के शॉट्स खेलना उतना आसान नहीं है, क्योंकि बड़े फॉर्मेट में खेल के आए हैं। बड़े बड़े खिलाड़ियों के विरुद्ध जितना इनका अनुभव है उसको पूरा काम में लगाएंगे यहाँ एंजल कोलकाता के लिए। একদম হর রোজ সরোজ। নাগ এক্ষেত্রে হাওয়ায় লালা চেষ্টা করেছিলেন, তবে একটা রান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। চমৎকার প্রয়াস ছিল লালা, তবে শেষ মুহূর্তে শরীরের ভারসাম্য সেটা রাখতে পারেনি। তবে বাউন্ডারি সেভ করেছেন, এটা সব থেকে বড় প্রাপ্তি লাল্লা। जी बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि अपने आप को जो है कि इन फ्रंट डाइव लगा करके प्रयत्न किया था। ये सारी चीज़ें टीम को अपग्रेड करती है। अगली गेंद लेकर सरोज, ऑफ साइड द ऑफ स्टंप, अच्छी गेंद, अच्छी वैरायटी, अच्छी क्वालिटी। इस ओवर में मात्र 3 रन आए। सुरजीत देख सकते हैं कितना जो है कि किफ़ायती ओवर, जबकि इसके आगे
अच्छी भरपाई कर रहे थे बैट्समैन नाग, और उसके उस समय इस कदर की गेंदबाजी, इसीलिए कहते हैं सरोज प्रमाणित किया है अपने आप को इस खिलाड़ी ने। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन, अब जरूरत 35 की जरूरत है। आने वाले 18 गेंदे 35 रन, सब कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके बाद प्ले ऑफ का दौर शुरू होगा, और प्ले ऑफ में यहां से कौन सी टीम जो है कि शिरकत करेगी यह भी देखना होगा सुरजीत। CCL कॉर्पोरेट क्रिकेट लीग पहला साल जो है कि ये ओपन टू ऑल फॉर्मेट में क्रिकेट चलता हुआ आज उसका दूसरा दिन। गेंदबाज ऑफसाइड द ऑफ स्टंप, लीव द बॉल। जहां तक अच्छी गेंद, अच्छी दिशा, अच्छी गति, कुल मिलाकर एक्सप्रेस डिलीवरी जो है कि प्रेजेंट किए गेंदबाज मनीष राठी। মনীষ রাঠি, তবে নাগ শর্ট অফ লেন, তার যে বলে যা প্রাপ্য, মনীষ রাঠি বুঝে গেছিলেন যে এটা খারাপ বল, এখান থেকে বড় শট আসছে, হজম করতেই হবে একটা ওভার বাউন্ডারি। একদম লড়াই তোমাকে মাঠে করতে হবে। হোয়াটস দেয়ার ইন এ নেম, নামে কি যায় আসে। बिल्कुल नाम नहीं, आपको काम करना है, और काम करेंगे तभी नाम होगा, क्योंकि आपका काम, आपका परिचय, आपके नेम और आपको ब्रांड बनाता है। जहाँ तक फील्डिंग में फेरबदल करना चाहते हैं, सरोज इस वक्त लीडिंग इन फ्रंट हैं, और लीडिंग इन फ्रंट वर्कआउट कर रहे हैं। मनीष की गेंद को जो है कि बाउंड्री लाइन के पार भेजा नाग ने, और सरोज स्वयं इस समय विकेट कीपिंग की भूमिका में, यानी कि स्थिति को बनाने के प्रयत्न में दोनों ही टीमें पुरजोर कोशिशें कर रही हैं। मनीष लाठी अपनी बॉलिंग मार्क से এখান থেকে হেলিকপ্টার স্ট্রেট ড্রাইভ দ্য গ্রাউন্ড। নাগ এই শটগুলো দেখার পরে কোথাও যেন আমরা একটু লেদার বলের ফিট পাই অরুণদা। বিদ্যুৎ গতিতে তুমি দেখো সোজা ব্যাটে, কোথাও কি সচিন তেন্ডুলকরকে মনে করালো নাগের এই শটটা? यस एब्सोल्युटली, बिल्कुल। सचिन तेंदुलकर एक ऐसे खिलाड़ी, जब स्ट्रेट ड्राइव खेलते थे तो अंपायर्स हेलमेट पहनना शुरू कर दिए। একদম স্ট্রেট ড্রাইভের কথা যখনই আসে তখনই সচিন তেন্ডুলকরের নাম চলে আসে। কভার ড্রাইভে তুমি যদি বিরাট কোহলির কথা বলো, ফ্লিকে KL রাহুল, স্ট্রেট ড্রাইভ সচিন তেন্ডুলকর। তবে ওয়ান্স অ্যাগেন নাগ ফুল টস, এক্ষেত্রে অনের দিকে খেলেছেন, ডিপে ধোনি, যতক্ষণে ফেরত পাঠাবেন একটা রান। তবে কাজের কাজ একদম বলতেই পারি, ব্যাক টু ব্যাক ওভার বাউন্ডারি দেন চিকি সিঙ্গেল। এই ওভারে অলরেডি 11 রান চলে এসছে। जी 14 বল থেকে 24 এর প্রয়োজন রুন্দা। 14 में 24 से चीजें सरल बनाने के प्रयत्न कर रहे हैं। अगली गेंद लेकर बॉलर मनीष लाठी। फुल टॉस गेंद, सही नसीहत, खुली हुई क्षेत्र में पूरा फायदा उठाया, फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। ওয়েস্ট সাইডটা চেক করতে চাইছেন, ওয়েস্ট সাইড চেক করতে চাইছেন আম্পায়ার। ফুল টস ছিল মনীষ রাঠি, ভুল ভ্রান্তি কিছু হয়েছে কিনা সেটা চেক করে নেবেন। जी बिल्कुल, टेक्नोलॉजी है, इसका उपयोग जरूर करना चाहेंगे। तीसरे अंपायर का रुख किए हैं ऑन फील्ड अंपायर्स। চেক করছে। তবে সেই ফাঁকে আমরা জানিয়ে রাখি এনজিও ইউরেকা প্রেজেন্ট CCL ওপেন টু অল ফরম্যাট প্রথমবারের জন্য ব্লকবাস্টার দুটো দিন অরুণদা, একদম সুপারহিট। শুধু বাংলা নয়, ভিন রাজ্যের প্রচুর খেলোয়াড় তুমি খড়গপুরের মাটিতে, তোমার মাটিতে বলতেই পারি আমরা, মিনি ইন্ডিয়ার মাটিতে
কি বলবে? यस एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट सुरजीत। फर्स्ट टाइम है लेकिन ये खेल एक आयाम को सेट किया है। नो बॉल, नो बॉल। কনফার্মেশন টুইস্ট নো বল, দ্যাট মিন্স এখান থেকে 5টা রান স্কোরবোর্ডে যোগ হয়ে যাবে এবং জয়ের জন্য প্রয়োজন এখান থেকে 14 বল থেকে 19 এবং সব থেকে বড় কথা এটা ফ্রি হিট। বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রটা ঘুরে গেল। কাকা তবে গতি ছিল এক্ষেত্রে মনীষ রাঠি অফ স্ট্যাম্পের উপর, গতিতে পুরোপুরি পরাস্ত করলেন। और इसी चीज़ के लिए जो है कि बात कर रहे थे सरोज मनीष के साथ कि आप कर सकते हो, आप करते हो, आपको करना है। जैसे कि हनुमान को उनकी शक्ति का ज्ञान दिलाया था, उसी प्रकार यहाँ मनीष को जो है कि सरोज ने उनकी शक्ति का अनुभव करवाया। একদম সরোজ এটাই বলছে, তুমি পারো, তুমি কেন তাহলে ভুল ভ্রান্তি করছো? তুমি তো পারো, তোমার কাছে গতি আছে, তুমি এটা যেটা করলে। তবে এক্ষেত্রে কোথাও খুশি হতে পারছেন না, শারীরিক পরিভাষা সরোজের সেটাই বলছে। তুমি দেখো অরুণদা, একটু কোথাও যেন হতাশ মনে হচ্ছে। তবে যাই হোক, একটা রান প্রতিপক্ষের স্কোর বোর্ডে 13 বল থেকে 18, এটা ভাইটাল ডেলিভারি। एब्सोल्युटली सुरजीत, क्योंकि चीज़ें जानते हैं खिलाड़ी क्या कुछ घट रहा है। ऑफसाइड के जानिब खेला, कवर क्षेत्र पर खिलाड़ी तैनात हैं। 1 रन से ही संतुष्ट। একদম একটা রান এবং সব মিলিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজন 12 বল থেকে 17। आप जीतने के लिए यहाँ से 12 से 17 चाहिए, यानी रिक्वायर्ड रन रेट 8.5। दो बैटर, एक तरफ नाग, दूसरी तरफ काका रामपुरा और एनसीएल कोलकाता यहाँ से कैसे रोकेंगे अगली 2 ओवर, किस तरीके से गेंदबाजी होगा। चलिए फाइनल ओवर, सेकेंड लास्ट ओवर के लिए सरोज प्रामाणिक खुद आए हैं। बिल्कुल इस वक्त जिम्मेदारी लेनी होगी और स्वयं सरोज आए हैं, इसका मतलब जिम्मेदारी स्वयं के कंधों पर लेना चाहते हैं, क्योंकि मैच का रुख अगर बदलना है तो ये ओवर निर्णायक ओवर सिद्ध हो सकता है सुरजीत। जी हाँ, अगर इस ओवर से अगर आप 4-5 रन खर्च करें और लास्ट ओवर में 12 या 13 रन रह जाए तो आसान होगा गेंदबाज के लिए, लेकिन पर अगर इस ओवर में ज़्यादा रन आप खर्च करेंगे तो इतना आसान नहीं होगा आपके लिए। बिल्कुल प्लानिंग दोनों ही तरफ सेट है, क्योंकि कैलकुलेशन, इक्वेशन सब कुछ चलता है क्रिकेट के खेल में। কাকা রামপুরা বড় শট, ওয়ান ড্রপ আউট অফ দ্য পার্ক। বিদ্যুৎ গতিতে ফ্ল্যাট ফিউরিয়াস। सत्रह में से 4 गेंद 13 बचे हैं। अब 11 गेंदे 13 रनों की जरूरत। टान टान तेज उत्तेजनार खेला। কাকা রামপুরা অফ স্ট্যাম্পের উপরে ড্রাইভ করেছেন। অরুণ দা সেন্সিবল ক্রিকেট বলতেই হবে। তুমি 12 বল থেকে যেখানে প্রয়োজন 17, সেই জায়গায় একটা বাউন্ডারি চলে এসছে, রানা বল ইকুয়েশন, তুমি শুধু বড় শট নয়, তোমাকে স্ট্রাইকটাও রোটেট করতে হবে, সেটাই করলেন কাকা রামপুরা। প্রয়োজন এখান থেকে 10 বল থেকে 12। ठंडा माता जेड़ा के बोला है सुरजीत, बिल्कुल काम एंड कूल खेल रहे हैं। नाग ऑन साइड पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, संपर्क कुछ खास नहीं। सुमन है शॉट स्क्वायर लेग पर। একদম ভ্যারিয়েশন ছিল। তুমি দেখো গত দুটো বলে যে গতি সরোজ প্রয়োগ করেছিলেন, এই বলটাতে কিন্তু সেই গতিটা দেননি, কোথাও একটু ফের ঘটিয়েছিলেন, বলের উপর ফিঙ্গারটা রোল করেছিলেন স্লোয়ার, যেখান থেকে গতিটা পায়নি নাক, রান আসেনি। ডট বল এই সময়। তবে গতির কথা বলছিলাম আমরা, গত বলটা স্লোয়ার ছিল, এই বলটা তুমি দেখো গতি ছিল। খোকন হালদার প্রথম প্রয়াসে ঠিকমতো তালুবন্দি করতে পারেননি, হয়তো তালুবন্দি হলে একটা রান আসতো না। जी बिल्कुल, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है कि एक मैच में बहुत कुछ उतार चढ़ाव, बहुत कुछ समीकरण में बदलाव लाती है, जब आपके पास ज़्यादा रन डिपेंड करने के लिए ना हो। একদম তুমি দেখো যেভাবে ছোট ছোট ভুল থেকেই তোমাকে শিক্ষা নিতে হবে। সরোজ প্রামাণিক, সামনে কাকা রামপুরা। আরো একবার বড় শটের চেষ্টা, তবে কাজের কাজ। বড় শট নাই আসুক অরুণদা, রান কিন্তু আসছে নিয়মিত অন্তরালে, স্ট্রাইকটা রোটেট হচ্ছে, যেটা সব থেকে বড়। और सबसे बड़ी बात है, पहले ही गेंद पर चौका जो बटोरा था, उसका फायदा जरूर मिल रहा है इस ओवर में। একদম তুমি 7 বল থেকে 10, এটা ভাইটাল ডেলিভারি।
এটা যদি ডট আসে ম্যাচ 50-50 থাকবে, আবার যদি এখান থেকে বড় শট এসে যায় সেক্ষেত্রে বোলিং ইউনিট চাপে থাকবে অ্যাঞ্জেল কলকাতা। बिल्कुल दोनों टीमों के लिए ये इस वक्त 50-50 मुकाबला चल रहा है। हार्ट इन माउथ जिसे हम कहते हैं, हृदय मुंह को आने वाला ये मैच। একদম দাঁতও তালে নাখুন চাবানে वाला मुकाबला। ऑन फील्ड अंपायर का वाइड का संकेत, लेकिन इस बार बॉलिंग टीम ने रिव्यू के लिए कॉल किया है। देखिए तीसरे अंपायर के लिए रुक किया है, समय लगेगा, प्रतीक्षा होगी। এবং পরের ম্যাচ, এই ম্যাচে যারা জয়লাভ করবেন তাদের সঙ্গে রেহান হ্যাস 11। আচ্ছা রেহান হ্যাস 11 প্লেয়ার লিস্টে সাবমিট করবেন, আর যদি সেম প্লেয়ার লিস্ট থাকে একটু বলে দেবেন। बिल्कुल क्यों नहीं, फेयर डिलीवरी, फेयर डिलीवरी। फेयर डिलीवरी फिर से एक बार, यानी कि अब सुरजीत मुकाबला और भी टेंस्ड सिचुएशन में जो है कि कन्वर्ट हो रहा है। একদম 6 বল থেকে 10 কে হবে বস, তাই তো? यस, 6 में जरूरत है 10 कदम लगाना होगा, 10 कदम चलना होगा, 10 के लिए विजय। दोनों टीमों के लिए बराबरी पर क्या कुछ होगा? क्या 10 रन डिपेंड कर पाएगी एंजल कोलकाता, या पीपी मेमोरियल सर्वाइवर्स 10 रन बना पाएंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दोनों टीमों के लिए इस मुकाबले में अब बचता है 10 कदम। इसके बाद वाले मैच के लिए ऑल थिंग्स हैज बीन सेट। रेहान हैश 11, इन दोनों टीमों में से जो जीतेंगे उनके बीच मुकाबला होगा। गेंदबाज ताल 6 में 10। কে হবে বস সব থেকে বড় প্রশ্ন চিহ্ন। কালকে 6 বল থেকে 13 রান একটা ওভার, দুর্দান্ত একটা ওভার। जी बिल्कुल, जरूरत के मौके पर कौन अपने आप को पाते हैं यह देखना लाजमी होगा। ताल की गेंद को ताल से ताल मिलाया है, आउट ऑफ द पार्क, मैक्सिमम के लिए भेजा है, 6 रन। गजब की बल्लेबाजी जरूरत के मौके पर। पीपी मेमोरियल सर्वाइवर्स बिल्कुल इस मैच को अपनी गिरफ्त में। বল 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 बॉल पढ़ावे, सब कुछ होना लाजमी है क्योंकि यह क्रिकेट सीसीएल कॉर्पोरेट क्रिकेट लीग के अंतर्गत ओपन टू ऑल फॉर्मेट ये एनजीओ यूरेका प्रेजेंट्स 5 गेंदे 4 रनों की जरूरत। পিপি মেমোরিয়াল সার্ভাইভার তাল কাকারামপুরা এখান থেকে বড় শট নাই আসুক, সিঙ্গেলটা এসে সেটা সব থেকে বড় প্রাপ্তি। 4 বল থেকে প্রয়োজন জয়ের জন্য 3 লেগ বাই সূত্রে। বাই হোক লেগ বাই হোক, তুমি প্রত্যেকদিন সকালবেলা তোমার অ্যাকাউন্টে যদি পয়সা দেখো, সেটা ফোনপে হোক, গুগল পে হোক, সেটা আইএমপিএস হোক, ব্যাংক ট্রান্সফার হোক, যেভাবেই হোক পয়সা আসাটা প্রয়োজন। আর ক্রিকেটের ময়দানে যেভাবেই হোক লেগ বাই বাই ব্যাট রান আসাটা প্রয়োজন। एब्सोल्युटली, लिमिटेड ओवर क्रिकेट ये कहता है कि स्कोर बोर्ड जो है कि चलते रहना चाहिए चाहे किसी भी प्रकार से हो। अगली गेंद लेकर ताल, নাক নাককে ফিনিশ করে যাবেন। নাক ফিনিশ হিজ ওন স্টাইল। পিপি মেমোরিয়াল অ্যান্ড সার্ভাইভার অন দ্য ম্যাচ। থ্যাংক ইউ রিজে, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। আচ্ছা মুন্না, মুন্না এবং টসের জন্য জয়েন করতে হবে, টসের জন্য খুব দ্রুত জয়েন করতে হবে। আচ্ছা দ্রুত জয়েন করবেন দুই দলের ক্যাপ্টেন টসে, দ্রুত, খুব দ্রুত।
আচ্ছা, রেহান হ্যাজ 11 ক্যাপ্টেন এবং রিভু এবং মুন্না দ্রুত জয়েন করতে হবে। পিনাকিদা এসো, পিনাকিদা, পিনাকিদা